Today we will see the material module. Log into voice portal, enter as the material user. After logging to the material user, you will see the menus. Same what you see. You can click any of the menus here, but you can see these menus are arranged in the material user format for the material user to access the application. Just there's a button plus button. If you click, Raman, 1 minute. Yeah, actually today we have today we have to publish the workshop names who are not attending the session. So kindly mark your attendance here. So today it will be published after the meeting. yeah, Yeah, you can continue, Raman. okay. So here the material uses the menu, only those menu which is relevant to his work activities will be displayed here. So we can see here material module, material reports, dashboard, RS process, RS failure, shop master data, scrap generation, integrated warranty claim, production planning. So today's agenda, we have the material module. We'll give a demo on this. Just click this material module. You can see all these submenus, material issue to rolling stock, material issue to assembly, material issue to production order, Axle UST test, then material issue section cost center, material issue person. So we'll go one by one. After that, we can see the reports. Now you can see there is a material issue to rolling stock. Click that. The material user, whoever is consuming materials for the rolling stock, they will see this holding list of wagons and coaches, electric locos and diesel locos, whatever relevant to the workshop. They will have to select that particular coach or wagon, and there is a button here left UDM rolling stock material. Once Ramesh, I'll call you. You can see these are the menus available. So the relevant ones are UDM right, RS material issue right back, then UDM material issue, UDM must change issue, UDM multiple material issue. So you can click here UDM material issue. So the material, if you know the material, you can enter the material number, or else you can choose from this list. These are the material which are being issued from the depot through the UDM module. These material will reflect here. So you have to fill this detail. You can see when you enter the material number, you can see the description has come automatically, and their rate, quantity, ledger number, folio number, all these details are available. You can change this actual date of issue by choosing the date, appropriate date. Then receiver's date details are available. This is it shows for the rolling stock 0 because you selected this rolling stock. If you wanted to add anything, you can add. Then purpose also, this is a editable field which is having a predefined data. You can change it. Then the demand number, if you know the demand date, allocation, work order number, IRPSM work ID. If all you have data with you, you can enter it. Scrolling down, you can see already this material issue has been given. Currently, there is all the material has been exhausted.
These are the material which has been issued to this rolling stock till now. So this material number is not. Let me check with another user ID. They have exhausted this material number. Yeah. Okay. Acha, now it's coming. Okay, all right. Yes, sir, loud and clear, sir. It was not audible, sir. Oh, sorry about it. Some network connection. One second. Is my voice now audible? Yeah, it is clearly audible, sir. Yeah, But yeah, please, now it is audible. Yeah. again. Login say, Raman, can you repeat this as from login? Yeah. Okay, right. I'll log. Yeah, sorry about that. Let me go back. So I'm logging as a store's user ID, shop store user ID, who takes the material from UDM, keeps in his custody, and at later stage we will be consuming this material to each of these rolling stocks. So I have just logged in as a material user here. Here, this is a bogie repair shop user. Now you can see here the material module may there are submenus. These submenus are material issue to rolling stock, material issue to assembly, material issue to production order, material axle UST test, material issue section cost center, material issue to person. We'll see one by one each one of these. So we'll see the first one, material issue to rolling stock, RS. So you can see that when that particular menu submenu is clicked, you see the holding list, this rolling stock holding list, whichever is relevant, whether it's a coach, wagon, electric loco, the list of holding will be displayed. From here you can select to which rolling stock you are going to consume that material. For that you'll have to select this row and click the material UDM material issue. So I've just entered a PL number for which the description is uh, g- uh, displayed here, and this is grayed out, and unit, stock, then the rate, and quantity being issued, that is also grayed out, then ledger, folio number, actual date of issue that you can modify it. So which one is the date you can choose, and receiver state detail, where you can see this is rolling stock number is being given. You can
add something to that, or you can change it also altogether. And also similarly for purpose usage remarks, which you can add or delete or edit. Then if you have the data for demand number, date, location, work order number, IRPSM work ID, then you can enter those details as well. And scrolling down, you can see the available stock details. Now you have this DMTR number and received from, and you will see the balance here, DMTR balance number, and the quantity to be issued. So you can issue some quantity here. Then if you know these detail as well, like the brand and product serial number, you can enter. The next line item also you can enter. Then there is a button here, material issue. You click that material issue, then this material goes to this particular rolling stock. You can see here, this is a rolling stock now. So it directly enters to the rolling stock. The issue for this rolling stock from UDM material goes to the directly to that rolling stock. In such way, you can exactly map what material has gone into the particular rolling stock. You can see the list of this list of material which has already gone into the rolling stock. So they have been doing this. So likewise, this is, you can do that one by one. And there is also feature, if you don't want to do one by one, there is a must change. I'll show that one. You will have to select that rolling stock, and there is something called UDM must change issue. So UDM must change issue is for that particular user ID for that particular section or for particular work center. So you'll have to identify what all material that will be used for that particular rolling stock for that section or that particular user. Then you can go into the master data and map it. That I think everyone knows that. So you can see here the list of must change item automatically appears here. You just have to enter the issue quantity here. The issue quantity by default is available as a total issue quantity, that is from the UDM. You can see here. So once you have thorough with that whether the material has gone to the rolling stock, then you can finally click this button, material issue button. Then the material goes into that particular rolling stock, and you can see these are the items which have been used for that particular rolling stock using the must change material issue. So this way your effort for entering the data is in a way automated. The next one is UDM multiple material issue. Here you will see only those materials. This is also a feature which provides the user to quickly issue the material to the rolling stock. So you can see the rolling stock number here. So you'll have to enter the actual date of issue. After that, these details will be the same as we have shown earlier. Then here, if you scroll down, you can see this is a multiple material issue. So you can see here the stock quantity is there, and you'll have to just do the issue part. Then click this material issue finally. After doing so, then the list of material issued for the rolling stock will be displayed here. You can see here. This way you can easily consume the materials for the rolling stock without any hassles. And coming to the next part, material issue to the assembly. So here the users are CBC coupler. So these types of materials are being handled for this activity for where the material can be issued.
I'm choosing bogie. You can choose the range also. Then the right side you can see the material issue button. Ensure the assembly number details are entered here and click material issue button here. So you can issue materials to that assembly. For this, in this case is bogie. So you can also further dismantle bogie to wheel set and to further to axles and bearings, so that you can issue material for those assemblies as well. This is similar to what you have seen for the rolling stock. These buttons are there. There is UDM material issue, UDM must change material, UDM must change issue, UDM multiple material issue. So I just have to click this UDM material issue. From there you can enter the PL number. The same tab open through the assembly under maintenance also. Pardon? Sir, same tab also open from the assembly under maintenance also. Acha, this is okay. You want it for assembly under maintenance. Yeah, Okay. actually sir, Yeah, same. yeah, 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 yeah. You can also do that. This is same as it. Since we don't have assembly module here, you can Yes, sir. also come through the assembly under maintenance also. Yes, you're right. Yes, sir. So what the user was saying is that this whatever you've seen here, he can also access this material issue through assembly under maintenance. This particular login was not this particular screen, whatever you see. This you can come through assembly under maintenance. So as there is no assembly user here, then if there is an assembly user, then they can also come through that way. So here provision for the material user convenience here. So they can come through material issue to assembly. This is as same as that. You will have to click the material issue, then go to the medium material issue, then enter the details. Then you will have to enter the actual date of issue. Then this available stock and material issue details will appear here. So this is a way for material issue for assembly as well. Once it is this both is done, but similarly for the UDM must change issue also. What we wanted to show also, I'll just show you. Because, if you're an assembly user, log into assembly user, say. So you can go to the assembly module here. So assembly under maintenance, click and go to the assembly which you wanted to issue material, then click material issue here. This way also you can come. Since material user is almost same as SSC only, sometimes it will be handled by another SSC. For their convenience, we have created the user for which the menu are little different from the shop SSC or the assembly user SSC. So the next one is material issue to production order. So the production order is nothing but the locally manufactured uh, items that will be consumed for the rolling stocks or for the section or elsewhere. So this is a demand list you can see here. So you have the right side the UDM material issue and UDM material issue bomb.
So you'll have to select this and click the UDM material issue. So you can choose the PL number. If you know the PL number, enter the PL number, the description will appear. Then unit, the rate will appear automatically, and the ledger folio number also will, you can check, and the actual date of issue you'll have to mention. And receiver's details and issue purpose usage remarks, you can modify it. This is the editable text. And once that is done, then the available stock will figure here. After issuing that stock, will have to click the material issue. Right now, for this material, there is no item there. And let me check with another item. Yeah. So you can see here for this item, you have 691 quantity stock is there. You can issue, and the brand name if you know, or the product serial number and the product serial number. Then click this button, material issue. It will figure in the material issue details. Like that, Can I speak? this will be issued for this particular demand. You can see the work order number and the demand number. This is for material issued to production order. The next one is Axle UST test. So I have to check any Axle is there. Okay. Now you can see here the parent is wheel set. The parent wheel set has this axle. Now they have one axle here. Now you can see no. If there is no UST test, you can just click no. Or if you have that done, then you have to click this axle UST test button. Click that. And the right side you can see UST document upload. You might have taken the photograph of that particular or the image or the document which has come from that machine. The document you can upload it by just clicking this button, choose file, then upload it. Before that you can take the image type, whether it is near end, far end, or the image subtype, scan 1, scan 2, all this detail you can enter. Axle no end, axle, non-axle no end, then face ID 2, then free text remarks you can enter this and click save. Then like that you can upload one by one. Then all these image uploads will come. This is for axle scan document that can be uploaded here. Now the next one is material issue section cost center. So you'll be issuing some material for the section. So for that we have provisioned here material UDM material issue to cost center. You can click this button, enter the PL number, or if you don't want why this you want to know, you can enter this part number or description if you know. So after entering this detail, you can see this details are grayed out, which is it is not editable. Actual date of issue you can choose. Then this issue details receivers detail will come. This is BR underscore accept issue to be for this user which is mapped to that particular work center. And demand ID if you know, and similarly others detail if you have data you can enter. Now this DMTR number and on quantity will come for this particular item. Right now there is no stock showing here. You check.
So whatever available here will be displayed. After that, you can enter this material issue, and for that particular user br underscore ICF, this material issue will be recorded. So this is material issued to cost section or cost. The next thing is material issued to person. So this is for person who where the items like tools will be issued, sometimes personal item like soap, cloth, glove, all these will be issued. So this you can click material, UDM material issued to person. So some materials are issued to some person as well. So those detail, if you know the PL number, this is a non-stock item where you can see the description will appear, and you can see the stock quantity here, then the amount and actual date of issue, that whether the issue type is returnable or non-returnable, and the receiver's details you can mention. You can say Ram Kumar, this is a person. You can this will come when you know the person name. You can just you have to write just type few characters, then this name will come, and the purpose of the remarks you can, it is an editable field you can make. Then the quantity for which the issue, for which the person, the quantity is being issued to that person. If there are multiple item being issued for the different, then you can issue multiple, or if else one or two, whatever quantity is required quantity you just enter. Then enter the brand name and serial number. If you know it is not mandatory, then click this material issue. So it will be a returnable material, and it will be recorded here for this person, Ram Kumar, this material has been issued. Like that you can choose non-returnable and choose the PL number and issue the material. So this way you can use the material module for rolling stock, for assembly, production order, then for cost center, then to the person. Sir, You can can you repeat also, the cost center, please? hello, yep, Can you repeat the cost center section? Actually, yeah, internet. okay, okay, this menu, na, material issue to section cost center. So you can see here the depot is PWCW. Here the right side there is a menu, UDM material issued to cost center. Click that. You have to enter the PL number here. Okay. Once you enter the PL number, you can see the description. Whom are we issuing this to? The section. For you can say some paint is being used by the section. There are some items which is does not being used in the rolling stock or in assembly. Rather, it is used by the section. Those items you can use this for this particular user, this particular menu. So same thing, only you are going to issue that material and click this material issue such that it will be issued to this particular section. You can see this, in this case this work center is br underscore ICF. This is to the section cost. Understood? Any doubt about this?
Material issues section cost center. No, sir. No, sir. Thank you. Okay. So going to the reports, material reports. You can see here RS wise material issue report is there. You can see the rolling stock wise material issues being what all the materials have been issued that rolling stock. Meanwhile, let that report open. Here you have stock position main stock depot. This is the one I was showing here. So you can choose the railway, you can choose the depot, then select it. It will filter those materials for this particular depot, store depot. You can check, or if you know the PL number, you can enter the PL number and check the availability here. And you can check the stock available here, the price details, year, first year issue, second year issue, third year, all this you can check here. You have to enter the rolling stock number. Let me see. Similarly, we can see other material reports. So you can see the holding material issue to rolling stock. So this gives a glimpse of the rolling stock number, type, its type, and what all the materials been issued to which all workshop. You can see here there is AB stores, air brake store, VR store, and these are the shop floors where the material for this particular rolling stock number, for this rolling stock, there is a coach here in this case has been issued. If you click this, show the detail, it will drill down. It's a drill down report. It will show details of that particular material. You can see here these are the material. The drill down report shows the individual item which has gone into this rolling stock. You can see here the rolling stock number, the type of rolling stock. All these details are available. For the full coach, you'll get it. Customizable report as well. These fields can be pulled down to the right side of the uh, to that other side, or if you wanted you can pull to the top also. This is called pivot report. Then UDM stock, it will show the UDM stock. Before that I'll show this report as well. This is one is RS wise material master report. This report shows that this for this rolling stock what all the material has gone into it. You can see here the PL number, location where the material has been consumed, the material description, and to which workshop. This workshop wise only, for that workshop only, and for this particular rolling stock. And for which date this material is gone, what is the quantity, what is the movement type, unit of measurement, everything, every details. This is a downloadable report. You can download. You can download it. Now
this one was I was trying to show you UDM stock that was not mapped, so it was not coming. Now you can see this is the UDM stock position. You can see for this particular workshop, this particular stock position, you can see it. You know the PL number, you can just enter the PL number, you'll get it will get filtered for those particular items. You can see there is more reports here like PL covered, uncovered, all these details are there. I think I request all the material user to kindly check one by one so that they get the reports whatever they wanted, or if they wanted some more requirement we can also develop new reports. So you can see here there are multiple reports. Each one of the reports you can check material consumption for rolling stock and assembly. This is also private. This is another report which gives totally what material has gone to the rolling stock as well as its assembly. So I end this demo here. If you have any queries, please you may raise. Okay. Vijan, Yes, Raman. you can take over here. Yeah, means some people have raised their hands. So I think MK. Something. So everybody had marked their attendance. Hello. Hello. As all the users who are attending this meeting, have they marked their attendance? Request if they are not Amrita, to. Yes, sir. Yes. Amrita Sarkar, your format is not correct from Jamalpur. Hello. Please follow the. We are announcing again and again. Your format should be same for all the user. First is your workshop code, then your username, your name, then mobile number. Amrita Sarkar. एक बार लेकर के फिर स्क्रीनशॉट लेके बता दो. Otherwise, your attendance will not be treated as a marker. ये गुरविंदर सिंह जगाधरी, दीपक जैन, बीकानेर. Please follow the same, just like last one attendance and mark from the GOC workshop and miss. Now you can ask your query one by one. Just like those you have raised the hand, MK. Or this Kamlesh Sarode is there. Kamlesh. Okay. Then Kamlesh, your voice is not clear. You can speak little loud. okay. Next one is Hasham Khan Pathan. नहीं उसका जैसे लास्ट में होता है पीपीसी लिंक नॉट लिंक इस टाइप का तो सारे ही होंगे. okay. No query from Assam. देवेंद्र चौकर. हाँ विजयन जी. जी. एक तो मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मुझे कोई भी आइटम पॉइंट में इशू करना है, जस्ट लाइक 2.5 या 3.5, तो वो इशू करने का प्रोविजन है. मुझे लगता है पॉइंट नहीं लेता है सिस्टम. ये नहीं सेम लेता है आपका जो यूडीएम में जो यूनिट होगा ना, अगर उसमें आप कर पा रहे हैं तो उसमें भी कर पाएंगे. नहीं, जैसे मैं गैस की बात करूं तो मुझे 3.5 kg अगर गैस इशू करनी है तो 3.5 ले लेगा. हाँ पॉइंट में ले लेता है. एक बार आप करके देखिए, कोई अगर इशू आए तो. अभी तो मैं फिलहाल तो नहीं.
देवेन देवेन हाँ जी, बॉस। यदि आप यूडीएम में प्रोविजन 3.5 करने का है तो यहाँ पे भी 3.5 का होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। एक डेढ़ महीने पहले मैंने देखा था, तब मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी। मैंने बस इशू रेज भी किया था। मैं दोबारा अगली चेक कर बार लेता हूँ। अगली बार प्रॉब्लम आए तो पहले यूडीएम में चेक कर लेना उस पीएल का। यदि ये पीएल सेम यूडीएम में पॉइंट में इशू होता है तो यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, राइट। अच्छा, सेकंड ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है बॉस। हाँ देवेन, पर्टिकुलरली उस पीएल का ही चेक करना है, ऐसा नहीं है गैस हाँ, मैं का समझ दूसरा गया। मैं पीएल इसी चेक कर। वजह हाँ, मैं समझ गया। मैं इसलिए पहले चेक करूंगा, फिर जो पर्सनली उठा लूंगा मुद्दा। दूसरा मुद्दा मेरा ये है ठीक। बॉस। हाँ, मटेरियल इश्यू टू पर्सन जो मॉड्यूल है आपका। हाँ आप हाँ जी, हाँ जी। आप बिजन जी बोलिए आवाज सुन पा बोलिए। रहे हैं मेरी? हाँ सुन पा हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ, मटेरियल इश्यू टू पर्सन में अगर मुझे कोई मटेरियल वापस लेना है, जैसे कि कोई भी, जैसे मैंने रेंज पाना या कुछ भी एक्सपायर दिया, वो डीएसएच करने के लिए वापस लेना है यूडीएम पे, तो उसका प्रोविजन है? नहीं, वो अभी अंडर उसमें है, इंटीग्रेशन में है। ये वर्कशॉप ने पहले उठाया था, तो हमारा इंटीग्रेशन अभी चल रहा है, तो उसके साथ ये जल्दी मिल जाएगा आपको। हाँ, अभी नहीं इसकी करेंगे वजह से मैं, तो। क्या है कि वो यूज नहीं कर पा रहा वो मॉड्यूल में, अच्छा क्योंकि हमारा लगभग 99% जो आइटम है वो रिटर्नेबल है। अच्छा। यूडीएम में प्रोविजन है ही ये हाँ, यूडीएम में तो है। रिटर्न करने का। हाँ, है। तो यूडीएम वाला एक बार मैं आपसे मीटिंग कर लूंगा, क्योंकि यूडीएम वाले बता हाँ, रहे थे आप ना मेरे साथ मीटिंग कर लेना। मैं भी थोड़ा हाँ, यूडीएम का कम जानता हूँ, यूडीएम के बारे में। ठीक 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 ठीक, कर लेंगे ठीक है, तो मीटिंग। भाई, हाँ, ये 2 पॉइंट है मेरे। अच्छा, तीसरा ठीक है। पॉइंट विजन जी मेटेरियल मॉड्यूल से अलग है। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ये कुछ वैगन ऐसी हैं विजन जी, जिनकी कोडल लाइफ कंप्लीट होने वाली है हम्म और उनका पीओएस भी हो गया। हम्म। तो रेलवे बोर्ड के लेटर के अनुसार मुझे उसका पीओएस नहीं करना है, क्योंकि वो 4.5 साल पूरी कंप्लीट नहीं करेगा पीओएस की पीरियोडिसिटी। अभी नहीं निकालना है। उस कंडीशन में मैं आरओएच कर रहा हूँ। हाँ तो लेकिन मेरे पास जो है उसका जो रिटर्न डेट है वो आगे बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। मैं जब आईआरएफएम के थ्रू जाता हूँ तो वो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। अभी अब यही प्रोसेस जो आईआरसीए का जो रूल है वो अभी इनकम्प्लीट रूल है। बीकान शायद अजमेर या बीकानेर ने रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा हुआ है, वर्कशॉप ने। सीआरएससी हम्म, ने भी लेटर लिखा है। सीआरएससी एनडब्ल्यूआर ने लेटर लिखा है रेलवे बोर्ड को। उस हम्म, प्रोसेस को कंप्लीट बताया जाए उसमें क्या होना है। ठीक है, उसका भी रेलवे बोर्ड का कोई जवाब नहीं है, लेकिन इन बिटवीन वी आर अंडर डेवलपमेंट। एफएमएम और 22 दोनों उसका बना के प्रोविजन देंगे, लेकिन अभी बोर्ड से गाइडलाइन उस पर स्पेसिफिक चाहिए। सीआरएससी एनडब्ल्यूआर से मेरा और एफएमएम टीम का 1-to-1 डिस्कशन हुआ है, जीएम सर का भी डिस्कशन हुआ है, जीएम सीएमएम का। ओके, ओके, तो जब उस तक पर मेरे को आईआरएफएम वाला ही प्रोसीजर अपनाना है। इन बिटवीन जब तक आपको उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। आईआरसीए जिस रूल की आप बात कर रहे हो उसकी सॉफ्ट कॉपी मतलब एनडब्ल्यूआर ने कई और वर्कशॉप ने भेजी है हमें, तो मेरी रिटर्न क्वेरी हमेशा वही रही है। उसके लिए फिर सीआरएससी एनडब्ल्यूआर को उन्होंने कांटेक्ट भी किया है रेलवे बोर्ड को, ऑन रिटर्न रिटर्न उन्होंने कम्युनिकेशन किया है रेलवे बोर्ड से। ठीक है ठीक है, विजन जी। हाँ, ओके ओके। लेकिन उसमें हम जल्दी मतलब उसको हम है हमारी उसमें पाइपलाइन में उसको जल्दी दे देंगे कोई ना कोई ऑप्शन। हाँ, उसमें क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत आने लगी है। डिवीजन वालों के मेरे को फोन आ रहे हैं, उनकी ठीक है, बीपीसी जारी ये नहीं हो देखो, रही है। लेकिन अभी उस पे हम कंप्लीट उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। बता दे रहा हूँ उसमें प्रोविजन क्या है। उनके अकॉर्डिंग आर प्लस जो भी रिटर्न डेट होगी और हम्म, 18 मंथ लिखा हुआ है, आर हम्म, प्लस 18। लेकिन राइट। आर प्लस 18 की कोडल लाइफ ही आर प्लस 12 बची हुई है, तो उस पर आर प्लस 18 कैसे लिख दोगे बिना उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करे बिना। ओके, हाँ, तो 1-2 ये महीने का दिक्कत आ रही है। हाँ, तो अब उस पर हमें आर प्लस 18 करना है या आर प्लस 12 करना है। ये मतलब आर प्लस 12 का मतलब कोडल लाइफ जितनी बची हुई है वो आईआरसीए में नहीं लिखा हुआ है। तो उसमें कायदे से होना ये चाहिए कि जितनी भी कोडल लाइफ बची है आर प्लस वो कोडल लाइफ होनी चाहिए, राइट रेजिडुअल राइट लाइफ। राइट राइट, यही वो होना अभी चाहिए। उसमें मेंशन नहीं है जो आपका रूल है उसमें। तो इसके लिए एनडब्ल्यूआर ने पूछा है, उस पर कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं आया अभी तक, लेकिन अच्छा, उसके अब इन बिटवीन हम अगर अब डेवलपमेंट मेरे कर रहे हैं। पास कोई वैगन इस तरह का आता है, डिवीजन से फोन आ रहे हैं कि इन वैगनों को हम बीपीसी जारी नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में फिर मुझे अब क्या करना है? हम कोडल लाइफ के बियॉन्ड आपको रिटर्न डेट हमारा सिस्टम प्रोविजन नहीं करेगा, क्योंकि सेफ्टी इशू है। तो उस पे हम मतलब जितनी भी कोडल लाइफ है उसके बियॉन्ड हम नहीं दे पाएंगे। नहीं, कोडल लाइव तक तो देंगे ना?
होटल लाइफ तक आपकी आपका जो अभी एड्रेस है वो प्रोवाइड करा देती है, आप उसमें डालिए फोटो और वो अपना प्रोविजन कर देती है। अच्छा, लेकिन मुझे उसको दे एफएमएमसी देंगे सही जल्दी। करा। हाँ, नहीं कर देंगे, उसको जल्दी सही हो जाएगा। तो ठीक है, ठीक है, ओके बॉस। और कोई इशू देवेंद्र के बाद और कौन? ये झांसी से है, सीएमएलआर झांसी से कोई, उन्होंने अपना नाम तो मेंशन नहीं किया है, सीएमएलआर डब्ल्यू झांसी से। कोई आवाज नहीं आ रही, ठीक है। एबीएस, एसएससी एबीएस, इंफॉर्मेशन सेल हुबली। हेलो हेलो। हुबली से बोल रहे हैं? हाँ, नहीं सर, अमित अमित बोल रहा हूँ जमालपुर वर्कशॉप से। अभी 1 मिनट रुकिए। इंफॉर्मेशन सेल हुबली, अभी आप अमित रुकिए, एक तरफ से चलते हैं। ओके सर, ओके। अमृता सरकार, अमृता सरकार। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं हाँ, गुड हुबली आफ्टरनून, वर्कशॉप से बोलिए। मैं हुबली जी वर्कशॉप जी से बोलिए। बात सर, ये यूडीएम मटेरियल इशू राइट बैक, एक बार ये वाला ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर देते। एक्सप्लेन करना है? अभी उन्होंने दिखाया था डेमो में, रमन। नहीं, हैव यू सीन दिस? नो, डेमो में नहीं दिखाया। ठीक है, एक बार क्यूए सेशन खत्म हो जाता है, अभी वो दिखा देंगे आपको। ये अमित कुमार अमन। हाँ यस सर। हाँ, बोलिए। सर एक है, उस पर पहले कहाँ भी से बात बोल हो रहे हैं? चुकी है सर, जमालपुर अमित कहाँ वर्कशॉप से? से सर। हाँ, जमालपुर बोलिए। वर्कशॉप सर, वो जॉब आपने मास अटेंडेंस मार्क कर एलोकेशन दी है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। सर जॉब मास एलोकेशन में जो आप अपडेट दिए हैं, जो 2-3 पहले हफ्ते से चल रहा है। पहले 1 मिनट रुकिए। मटेरियल से कोई इशू है आपका? नहीं सर, मटेरियल से कोई इशू नहीं है। आज जो डेमो हुआ है उससे कोई इशू है? नहीं नहीं सर, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बताइए, अब कौन सा जॉब वाले में क्या इशू सर है? वो जॉब मास एलोकेशन और कंप्लीशन वाला जो 2 अपडेट आया है 2-3 हफ्ते से। 2-3 हफ्ते से नहीं आया है, वो बहुत पहले से आया है। आप 2-3 हफ्ते पहले आपने स्टार्ट हाँ किया सर, है। बहुत 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 पहले से आया है, लेकिन जैसे पहले था व्यू ऑर्डर में ही जाके तीनों चीज हो जाता था, ऑर्डर देन कंप्लीट वर्क ऑर्डर। लेकिन अब सबका प्रोसेस चेंज हो गया है। तो हम्म, जैसे सर हम एंगल कॉक देखते हैं, तो एंगल कॉक एक वैगन में 4 लगता है। हम्म, तो उसमें सर जब इंस्पेक्शन करते हैं ना, तो उसमें 6 टाइप का ऑपरेशन आता है एक एंगल कॉक के लिए। हम्म, तो जैसे जॉब मास एलोकेशन में जाते हैं, और जब सारा नीचे का जो प्रोसेस होता है, जहाँ एलोकेट करना होता है ऑपरेशन को, तो 4 एंगल कॉक के लिए हमको 24 बार क्लिक करना पड़ता है नीचे, क्योंकि एक एंगल कॉक में 6 ऑपरेशन होता है। हम्म। तो 24 बार करना पड़ता है, और एक दिन में सर 30 वैगन यहाँ ऑफर इस होता है ऑफलाइन। कैलकुलेशन का मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आपके 4 एंगल कॉक हैं, तो आपको इंडिविजुअली हम करनी है। हमने मल्टीपल सिलेक्शन का दिया है। अब आपको हर चीज एक जगह लिख करके नहीं मिल सकती। कल को मुझे बताना पड़ेगा इस एंगल कॉक पे किसने काम किया है, इस एंगल कॉक पे कितना टाइम लगा, तो मैं नहीं दे पाऊंगा फिर। नहीं सर, वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, जो ऊपर का जो प्रोसेस है ना, जिसमें गैंग को सिलेक्ट करना, वो सब तो हम सिलेक्ट जैसे हो रहा है वैसे ही रहने दीजिए। नीचे में अगर चेक बॉक्स मिल जाता तो थोड़ा हेल्प हो जाता, उसमें जल्दी हो जाता। कौन सा चेक बॉक्स कहाँ पे? क्या बोल रहे सर? आप कौन सी जगह चेक बॉक्स? जहाँ सर किट सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे हम एंगल कॉक के लिए निकालते हैं ना, OH और स्ट्रिपिंग फिटिंग वाला जो किट होता है, उसमें 6 टाइप का ऑपरेशन आता है एक एंगल कॉक के लिए। नहीं, तो कौन सी की जॉब बात मास कर रहे हो एलोकेशन, मुझे अपनी? हाँ, बताइए। जॉब मास एलोकेशन में पहले आप जॉब सबसे मास पहले गैंग एलोकेशन में, सेलेक्ट करते हो। गैंग सेलेक्ट हाँ करते सबसे हो, फर्स्ट में, एम्प्लॉय हाँ आती है। सबसे एम्प्लॉय के बाद में आपको नीचे ऑर्डर आती है, ऑर्डर के बाद में उसकी एक्टिविटी आती है। अब किस में हाँ प्रॉब्लम है सर, आपको? चार्ट
जो सबसे नीचे वाला जो एक्टिविटी है सर, 4th नंबर का, हाँ तो उसमें सर क्या होता है ना, 6 टाइप का ऑपरेशन होता है एक एंगल कॉक का पीओएच और एसटीपी फिटिंग के लिए। तो अगर मुझे 4 हाँ लगाना है तो 24 बार क्लिक करना पड़ता है। तो उसी तरीके से सब में होता है सर, डीबी में भी 5 होता है, ब्रेक सिलेंडर में भी होता है। तो सबको बार हाँ बार अगर वहां पे आप ऊपर गैंग वगैरह में तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि वहां सब एक बार में सेलेक्ट रहे तो वो फिर गलत ही हो जाएगा। लेकिन नीचे जो कीट है सर, अगर कीट हम एक छोड़ भी देते हैं तो वो गलत ही हो जाएगा ना। तो कीट में अगर चेक बॉक्स हमको मिल जाता है तो एक बार में सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे किट बॉक्स में एक बार क्या कहते हैं? ये मतलब उसमें आप मल्टीपल एंगल कॉक तो सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में वहाँ पे नीचे। अगर जैसे आपने एंगल कॉक असेंबली बना रखी है और मतलब एंगल कॉक के जितने भी जॉब ऑर्डर्स हैं उन सबको एक साथ आप सेलेक्ट करके एक साथ ही गैंग को असाइन कर सकते हैं। हाँ सर, जी वही सर, बोलना चाह यही रहा हूँ कि तो ये एक साथ अगर आप असाइन करते हैं तो वो सुविधा ही होगा सतीश ना कहाँ सर। से छूटे। जमालपुर से बोल रहे हो? हाँ सतीश आप जमालपुर से हो? जी सर, सतीश बोल रहे हैं, जमालपुर से ही बोल रहे हैं सर। ठीक है, एक एक करके बोलिए। तो वही ये चीज वाला हमको भी पूछना है। एक एक करके सुनने दीजिए, आप 1 मिनट एक एक करके सुनने दीजिए। मतलब ये वाला ऑप्शन तो वैसे ऑलरेडी है कि आप सर, मल्टीपल। मैं एक चीज और एक्सप्लेन करूँ, शायद आप जल्दी समझ जाओगे। हाँ हाँ इंस्पेक्शन जैसे मटेरियल इशू किए, सेकेंड स्टेप इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन के जस्ट बाद हम जाते हैं स्टार्ट वर्क ऑर्डर करने के लिए, ठीक है सर। हाँ। तो स्टार्ट वर्क अरे ऑर्डर करने जाते हैं तो वहाँ आप एक चीज बताइए, सारा एक जगह बैठ के काम कर रहे हो? आप ही इंस्पेक्शन, आप ही मास जॉब एलोकेशन, आप ही मटेरियल इशू करते हो क्या सब हाँ काम? सर, नहीं मत, एंगल कॉक का जो भी काम है वो हम ही करते हैं सर। क्यों मास जॉब और मटेरियल, मतलब आप क्यों कर रहे हो हर चीज? क्योंकि सर एक जैसे एंगल कॉक एक पूरा पोर्शन है वो मुझे ही असाइन किया गया करने के लिए। डीवी जैसे सतीश जो बोल रहे थे अभी, वो डीवी करते हैं तो वो सारा डीवी का पोर्शन वही देखते हैं। कोई ब्रेक सिलेंडर कर रहा है तो ब्रेक सिलेंडर पूरा वही कर रहा है। तो इस मटेरियल वजह से कर रहे हो, आपने 5 लोगों को बैठा करके पूरा 22 एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, है ना? सर एंगल कॉक के मटेरियल इशू से लेके और उसका मार्क फिट करने तक का तो एक ही आदमी कर सकता है ना सर। फिर वो तो जैसे हम कर रहे हैं मटेरियल इशू जिस तरीके से, फिर कोई और आके उसका कोई और पोर्शन करेगा तो फिर वो कंफ्यूजन ही होगा ना सर। इंस्ट्रक्शन भी आप ही करते हो, मटेरियल इशू भी आप ही करते हो, जॉब और जॉब ऑर्डर भी आप ही बनाते हो, सब कुछ आप ही करते हो। चलिए ठीक है, जो भी कर रहे हैं, मुझे उससे आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है खैर। लेकिन ये गलत है जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, एक जगह बैठा करके सारा डेटा एंट्री कर रहे हो, वो सही सिस्टम नहीं है आपका। लेकिन आप बताइए, मास जॉब एलोकेशन में आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? कौन सी लास्ट वाली स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। सर मास जॉब एलोकेशन से पहले स्टार्ट वर्क ऑर्डर करते हैं, देन मास जॉब एलोकेशन में जाते हैं। तो स्टार्ट वर्क ऑर्डर जहाँ करने जा रहे हैं वहाँ 6 टाइप का ऑपरेशन आता है एंगल कॉक के लिए। हाँ ठीक तो ठीक है। 6 टाइप का वहाँ ऑपरेशन को सिलेक्ट करने का एक चेक बॉक्स दिया हुआ है कि 6 टाइप का सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन जॉब मास एलोकेशन में और कंप्लीशन ऑर्डर में वहाँ नहीं है ये टाइप का चेक बॉक्स। तो हम चाह रहे हैं कि आप वहाँ भी दे देते हैं तो जो भी चेक बॉक्स को करना पड़ता है ना, बार बार क्लिक करना, वो खत्म हो जाएगा, एक बार में ही हो जाएगा। वो भी ऑप्शन आपसे छीनने वाले हैं हम तो, जो आप क्रिएट कर रहे हो, वो भी ऑप्शन आपसे क्रिएट छीनने और वाले हैं। क्रिएट और दूसरा यूजर बनाएगा, सारे वर्कशॉप बोल रहे हैं हमसे। पूछो यहाँ पे मीटिंग में, कहते हैं कि इंस्पेक्शन का यूजर अलग होना चाहिए असेंबली का। तो फिर सर ये हो सकता है ना कि डीवी हो गया, एंगल कॉक हो गया या ब्रेक, सबका इंस्पेक्शन कोई और यूजर कर रहा है, मटेरियल इशू कोई और, ऐसे हो सकता है ना सर। हाँ हाँ, ऐसे ही तो तो होगा। होना तो ऐसे ही चाहिए कि मटेरियल इशू को एक कर रहा है तो अगर गलती भी हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी कि तो ये मटेरियल आपका इशू में इंटरनल, गलती हुआ तो कहाँ। मैं तो बार बार वही बोल रहा हूँ कि आप अकेले कर रहे हो, ये गलत प्रैक्टिस है आपकी, तभी आप परेशान हो। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, यही चीज मैं भी बोल रहा हूँ कि आप जो अकेले लगे हुए हो कि आपने डेटा एंट्री ली और एक जगह बैठ करके सारा एंट्री कर रहे हो, वो गलत प्रैक्टिस है। लेकिन मुझे मास जॉब एलोकेशन में आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, किस में आ रही हो? जैसे यहाँ पे है राम की, आपको समझ में आ रही है, और
या और किसी यूजर को जो यूज कर रहे हैं यहाँ से। सौरभ, आपको समझ में आ रही है या जी आप सर। इंडिविजुअली बैठ? हाँ बताओ सौरभ। सतीश आप रुकिए। सतीश, आपको तो मैं जमालपुर के सारे एक ही चीज बोल रहे हैं, लेकिन मैं किसी और दूसरे वर्कशॉप से सुनना चाह रहा हूँ। रघु, आप हो क्या? लो उससे लिलुआ से। सौरभ आप हो? मीटिंग। जी सर, सुनिए ना। हाँ आ जाएंगे। हाँ बोलिए सतीश जी बोलिए। ऑपरेशन जो पेंडिंग होता है ना सर, वहां पर जो है कि अगर ऑल सेलेक्ट वाला ऑप्शन रहेगा तो वहां भी ठीक हो जाएगा सर। क्योंकि अगर एक गैंग का काम है तो एक गैंग का काम उसी दिन उसको कंप्लीट करना है, तो उसको हमको किसी को छोड़ना ही नहीं है। जब छोड़ना ही नहीं तो हम एक साथ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप गैंग सही बना लीजिए, दे देंगे उसको। पहले गैंग सही बनाइए। आपने गैंग किसी ने भी वर्कशॉप ने सही नहीं बना रखे हैं, आप सिस्टम में डेटा करेक्ट नहीं डालोगे। मेरा बार बार गैंग इस सर मीटिंग में एक ही वो जो है ना सर, उस दिन जो हम बता रहे थे उसमें क्या था कि उसमें गैंग में आदमी ही नहीं था, स्टाफ नहीं था। उसमें स्टाफ डाले तो फिर आ गया सर वो यहाँ पे। वैसे भी नहीं, वो माइंड ठीक में है। आया मैं उसकी staff- गैंग सही बना दीजिए। गैंग आपका कितने एम्प्लॉय का गैंग होता है? सब में अलग अलग, जैसे डीबीपीओएच के लिए है तो उसमें लगभग मैं 22-23 पूछ रहा हूँ है। आप गैंग एक आप वर्कशॉप 22-23 को भाई किसी को वर्क वर्कशॉप जॉब एलोकेशन करते हो, रजिस्टर में जब लिखते हो 22-23 आदमी को इकट्ठा काम दे देते हो, जाकर के आप एंगल कॉक लगा देना। नहीं नहीं सर, नहीं एंगल नहीं कॉक सर, में जैसे डीवीओएच है ना सर, तो ओएच एक आदमी बनाता है सर, ओएच करता है, एक टेस्ट करता है, तो वो 2 टिकट आता है सर एक गैंग में, तो उस गैंग से उस डीवी के लिए सेलेक्ट करेंगे, फिर सर आपने उस कोई टिफिन भी ऐसा कोई भी गैंग नहीं बना रखा है जिसमें 2-3 एम्प्लॉय हों। आपने सारे सेक्शन में 4 गैंग बना दिए, 50 लोगों में, 20 में, किसी ने 25 ने, किसी ने 30 एम्प्लॉय बना रखे हैं। फिर क्या करोगे आप? सिलेक्ट ऑप्शन लेकर के एकदम तो सिलेक्ट सर नहीं करोगे सर, और तो गैंग, सर जहाँ गैंग की बात है ना वहाँ आप सिलेक्ट ऑप्शन नहीं दीजिए। वहाँ तो हम मैनुअली वन वन जो प्रेजेंट रहेगा उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। वहाँ देने से मिसयूज हो जाएगा। लेकिन नीचे जो ऑपरेशन एक्टिविटी आता है गैंग के जस्ट नीचे, उसमें सर वो एक बार सिलेक्ट का ऑप्शन मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऑपरेशन आईडी किसी का 5 है, 6 है, जैसे एंगल कॉक में 6 है, डीबी में 5 है, तो 5-5 बार क्लिक करना पड़ता है। तो गैंग में तो आप मत दीजिए, कभी मत दीजिए, नहीं तो लोग उसका मिसयूज करेंगे ही। उसमें हम क्या दें फिर? तो नीचे वाले में सर एक चेक बॉक्स दे दीजिए जहाँ पे वो हम सारा को एक बार सेलेक्ट कर पाए। 6 टाइप का ऑर्डर आईडी है ना हमारा एंगल कॉक में, 10, तो 20, है 30, तो 40 करके ऐसा। वहां पे मल्टी सिलेक्शन है तो नहीं है सर, अभी तो हम जस्ट खोल के देख रहे हैं, नहीं आ रहा है यहाँ। देखा ना। हमको वन आप बाय वन बोलो। वन बाय वन आप जो 6 टाइप का ऑपरेशन सेलेक्ट करने की बात है ना सर, वो एक जगह है, दूसरे जगह नहीं है। जॉब मास एलोकेशन में नहीं है और एक मिनट ऑपरेशन एक मिनट पेंडिंग फॉर कंप्लीशन में नहीं है। एक मिनट रुको। आप जमालपुर का और कोई कंप्लेन है इसके अलावा? और कोई इशू है? आपसे हम अभी बाकियों का सेशन हो जाने दो। आपको इसी मीटिंग में रहना। आपके साथ में एक डेमो करके देखते हैं, ठीक है? जिनको और को ओके रुकना सर। होगा वो इस प्रोसेस को देख लेंगे। इस मीटिंग को खत्म नहीं करेंगे, आपके साथ इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं, ओके सर। और ठीक है? एक और सवाल था सर, हाँ कोई वैगन वैगन वाले शॉप का ये मतलब डेमो दिखाइएगा ना सर, और अच्छा रहेगा हम लोग के लिए, जमालपुर के लिए। छोड़ो अभी अभी रुको। और किसी को प्रॉब्लम है? पहले इनकी सबकी क्वेरी इन्हीं के चक्कर में बात complete कर रहे हैं। रंजन, ये राजन। हेलो हाँ हेलो, बोलिए। नंदलाल बोल रहे हैं फ्रॉम खड़गपुर वर्कशॉप। कौन बोल रहे हैं? राम खड़गपुर वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ हाल बोलिए है बोलिए। सब लोग बढ़िया। खड़गपुर से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, हाँ बोलिए। बहुत कम आ रही है आपकी। नहीं, मैं अभी आपने दिखाया अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का जो एक्सेल पैटर्न लोड करने के बारे में, हाँ हाँ हाँ। उसको थोड़ा फिल्टर करके नहीं हो सकता क्या? क्योंकि उसको 2 बार स्टेप डाउन
खोल करके फिर देखना पड़ता है। अगर वही चीज हमारा कहने का मतलब असेंबली आईडी के पास कर देते तो डायरेक्ट दिखाई दे देता, नहीं तो फिल्टर कुछ होता है जैसे कि जो किए हैं डाउन हो जाए, जो नहीं किया हुआ ऊपर में रहे सीरियल वाइज, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? वो नहीं, थोड़ा आसान होगा, थोड़ा और फास्ट हो जाएगा मेरा काम। विकास सर क्या कह रहे हैं? ये क्वी ओपन करने वाला बोलना है सर। एक्सेल का तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, व्हील साइड एक्चुअली। हेलो, हेलो, हाँ एक्सेल में तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, व्हील साइड एक्सेल के अंदर आता है ना, इस पे शायद इसमें नहीं आता। मैंने देखा, अभी आपने दिखलाया था, मैंने भी किया। उसको करने से अगर कह रहे थे ना, जैसे अभी मेरे को पहले असेंबली आईडी ओपन करते हैं, उसके बाद एक्सेल में दिखाता है कि यस और नो, ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा था अगर उसको कहीं सेपरेट इस तरह से फिल्टर कर देते कि हाँ जो किया हुआ है एक डायरेक्शन में रहता और जो नहीं किया हुआ आता, तो हम लोग डायरेक्ट वहीं से लोड कर देते, क्योंकि इसमें हमको पहले जाके एक्सेल में फिर उसको हम लोग असेंबली आईडी ओपन करना पड़ता है, तो वहाँ दिखाता है कि हाँ हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद फिर हम लोगों को पीडीएफ में जाना पड़ता है एक्सेल का। तो फिर आप असेंबली आईडी जो यहाँ पर है ना प्लस लिखा हुआ, उधर कहीं कुछ शो कर देते नो या यस, यूएसटी नो, इसका एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक। हेलो, देखिए होगा, अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके ओके ओके। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, कहाँ से बोलो? थोड़ा तेज बोलिएगा। सर अजमेर वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हेलो सर, मेरा मटेरियल मॉड्यूल से नहीं है क्वेरी। एक्चुअली हम वैगन को डिस्पैच कर रहे हैं ना, जिन वैगन को पीएच प्लस कन्वर्जन में डिस्पैच किया जा रहा है, उनकी रिटर्न डेट अपडेट नहीं हुई सर वैगन मास्टर पर। अब हो गई होगी, पहले नहीं हो रही थी। नहीं, मैंने आज ही एक वैगन था, वो चेक किया था, उसका देखा भी मैंने उसकी। उस दिन सर शायद आपको याद हो, दिवाली के दिन भी एडब्ल्यूसी में फोन किया था, वो सारे वैगन यूएच प्लस कन्वर्जन के थे। ठीक है, आपका इशू नोट कर ले रहे हैं। ये एक बार किसी ने रेज किया था, आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, नहीं चेक कर लेते हैं। आप मुझे वो आज आजकल में जो वैगन नंबर दिया है ना, ठीक है सर। वो बात तो या तो चैट बॉक्स या पर्सनल, आपके पास किसका नंबर है मैं इसमें? विकास सर को मैंने भेजा है, मैं एक बार इनको वैगन नंबर सही दे दूँ। भेज दिया है ना? ठीक है, चेक कर हाँ, लेंगे अभी। ठीक है, ठीक। और ये जो मटेरियल इशू है सर असेंबली में, असेंबली अंडर मेंटेनेंस का। हाँ हाँ हेलो हाँ, बताइए। हाँ सर, मटेरियल इशू असेंबली जो अंडर मेंटेनेंस है, इसमें जो मल्टीपल मटेरियल इशू का ऑप्शन दे सकते हैं क्या सर? क्योंकि जो मेजर वर्क होता है सर हमारे पास, जो मटेरियल इशू का, वो हमारे असेंबली पे होता है, जैसे कि डीबी हो गया, ट्रॉली हो गया, बॉगी हो गया, इन सब पे मटेरियल इशू। रोलिंग स्टॉक में तो सर कम ही चीजें रह जाती हैं। हाँ, तो ये मल्टीपल दिया हुआ है ना, उसमें आप चेक करेंगे असेंबली में जाके तो आता है। असेंबली में सर शो नहीं कर रहा है सर। Because here, can I just demo? Can I give a demo? यस सर, यस सर। 1 second. Can you see this material module? Hello. यस सर, यस सर। Material issue to assembly. Okay. We're choosing the assembly. Go to the assembly. Click material issue. So you're talking about multiple UDM material issue, isn't it? यस सर। You are from which workshop? झांसी वर्कशॉप सर। झांसी 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 सर। Jansi. Okay, okay, okay.
So can you see here UDM multiple material issue new, and there is also Okay, sir. UDM multiple issue. It is there. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Next case. UDM multiple materials. ये बाई राजेश, लक्ष्मी कुमारी। यस सर, मैं जमालपुर वर्कशॉप से बोल रही हूँ। मटेरियल मॉड्यूल से ही मेरा क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर जैसे यहाँ पे प्रिंटेड मोनोग्राम ब्रेक सिलेंडर में लगता है, तो उसको मस्ट चेंज में होना चाहिए सर। वो हर सिलेंडर में लगता है, पर मस्ट चेंज में वो आइटम है ही नहीं। तो ये आपका ईडीपी लॉगिन में हमने ऐड करने का ऑप्शन दे रखा है, तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, या अपने ईडीपी इंचार्ज को बोल सकते तो उसको ऐड कैसे कर सकते हो? यूडीएम मल्टीपल मटेरियल में वो है, पर मस्ट चेंज में नहीं है। मस्ट चेंज में एक ऑप्शन हमने मास्टर डेटा में दे रखा है। मास्टर डेटा में जाएंगे, एक असेंबली मस्ट चेंज मास्टर डेटा करके एक ऑप्शन है, तो उसमें जाके आप ऐड कर सकते हैं सेक्शन वाइज। सर एक बार दिखा देते तो। ये 1 मिनट रमन। बस। मैडम आपको वैसे भी ये ऑप्शन आपकी आईडी पे नहीं मिलेगा। आपका जो एडमिन यूजर है ना, ईडी कौन देखता है अभी? आपका अभी एप्लीकेशन लक्ष्मण देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? हाँ वही देख रहे हैं। हाँ वही देख रहे हैं। लक्ष्मण से पूछिए, लक्ष्मण को पता होगा। लक्ष्मण एक बार ऐड कर देगा, वो आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण इस मीटिंग में है। आप लक्ष्मण से बोलिए मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि यदि उनको नहीं पता है तो वो आपकी आईडी पे मैं दिखा भी दूंगा, तब भी आपकी आईडी पे मिलेगा नहीं। ओके सर, ठीक है। तो आप एक बार लक्ष्मण इस जमालपुर से जितनी भी टीम है, अपने अपने सारे लोग वैसे एडमिन यूजर जरूर अटेंड करें। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ लक्ष्मण। हाँ सर, राकेश बोल रहे सर, हम इनका करा देंगे सर। मैं इनका करा दूंगा सर। ठीक है जी सर, जी सर। मैडम आप राकेश से बात कर लीजिए, राकेश कर देगा। ठीक है, ओके सर। ठीक। अभी बाकी सारे लोगों से मैंने 1 बाय 1 पूछ लिया। अब आप और किसी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन रेज ए क्वेरी। अभी किसी को अमित थे, कौन थे, मैंने उनसे बोला था बाद में बात करते हैं। तो और किसी की क्वेरी है जमालपुर के अलावा? हाँ सर, जमालपुर से राकेश बोल रहे हैं सर। जब मटेरियल सर इशू करने के बाद आपके साथ में भी एक रख रहे हैं, तुरंत इसी मीटिंग में कंटिन्यू करेंगे आपके साथ में। बाकी किसी वर्कशॉप को और कोई क्वेरी है? ठीक है, अब जमालपुर की जो इशू है ना उसको देख लेते हैं। बाकी लोग यदि तो सर लीव आउट करना चाहें। अमित फ्रॉम जियो सर। हाँ बोलिए सर वो जमालपुर वर्कशॉप से जो बोल रहा था ना, जो गैंग वाइज मार्च जमाल क्वेश्चन में जिधर वो ऑपरेशन है उधर पूरा सिलेक्ट करने का वो ऑप्शन। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर, वो जमालपुर वर्कशॉप जैसे बोल रहा था, जो गैंग वाइज मार्च जमाल क्वेश्चन है ना, उधर जैसे वो हम जो ऑर्डर सिलेक्ट कर साइड में जो ऑपरेशन आता है वो पूरा सिलेक्ट करने को ऑप्शन दे दे, वो अच्छा होता है। पूरा सिलेक्ट कर दे देंगे तो सारे ऑर्डर पे आप एक बार में कर देना। नहीं ऑर्डर पे नहीं सर, ऑर्डर पे नहीं, ऑपरेशन पे। और एक ऑर्डर के अंदर जैसा एक ऑर्डर के अंदर कितने ऑपरेशन होते हैं? 300 ऑपरेशन होती हैं। 3-3 हजार घंटे, मतलब 300 घंटे 400 घंटे का होता है काम। 400 घंटे का मतलब एक बार में मल्टीपल दे दूंगा। आप पूरे दिन का 5 दिन का काम एक दिन में बांट के खत्म कर दोगे, फिर आपका इंसेंटिव डेटा बेकार निकलेगा। कुछ चीजें जो रोकी है ना, वो आपके फ्यूचर को देखते हुए रोकी है हमने, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं बनेगा उसका, आपका सारा डेटा गड़बड़ निकलेगा। चलो अभी अमित बोल रहा हूँ सर। ओके सर, ओके सर। सर वो जो ऑपरेशन आईडी है सर। हाँ मैं अभी आपके साथ जमालपुर होल्ड करिए। आप लोग होल्ड करिए थोड़ा सा। ओके सर। किसी वर्कशॉप को और कोई क्वेरी है?
ठीक है, फिर इस सेशन को अभी खत्म करते हैं। जमालपुर के इशू पे किसी को वो है देखना है तो अभी जमालपुर को हम डेमो अभी उस पर दे रहे हैं, उसमें देखना चाहे देख सकते हैं। बाकी अब हम उसको कर लेते हैं। अभी हम आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? अब बताइए कौन ओके सा सर। क्या स्क्रीन दिखाई वो दे रही है, दिखाई जमालपुर से? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे जैसे गैंग के ये एम्प्लॉयज आ गए आपके, है ना? एम्प्लॉयज हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऐसे, तो जैसे वाले पे मैंने ये सेकंड वाले बोगी पे क्लिक किया तो इसके सारे ऑपरेशंस आ गए हमारे, है ना? और ऐसे ही अगर इस वाले बोगी के ऑपरेशंस पे भी क्लिक करना है तो इस पे भी आप क्लिक कर देंगे। तो अब बताइए इसमें क्या चाह रहे थे आप? ये लास्ट वाली स्क्रीन है सर ऑपरेशन कुछ डाउट एक्टिविटी जो दिखा रहा है 4th नंबर पे, तो इसमें सर एक टिक बॉक्स अगर मिल जाता तो सही रहता सर। अगर इसमें अगर एक क्लिक छूट भी जाता है वो तो फिर गलत ही हो जाएगा ना सर, जिसमें गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे इसको। चेक बॉक्स की जरूरत क्या है आपको? मैं कह रहा हूँ ये लीजिए, बिना चेक बॉक्स के मल्टीपल सिलेक्शन है, तो ये 2 सिलेक्ट कर दिए मैंने। तो सर जैसे हम एक एंगल कॉक के लिए इंस्पेक्शन करते हैं तो 6 ऑपरेशन आते हैं, तो 6 को बार बार करना पड़ता है ना सर। यार वो प्रॉब्लम दूसरी है, आप चेक बॉक्स मांग रहे हो ना। चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है? चेक बॉक्स का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्शन, यही होता है ना चेक बॉक्स का। आपने चेक बॉक्स दे दूंगा तब भी तो आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा। तो वो तो ठीक है सर, लेकिन एक क्लिक पे जैसे गैंग वाले में जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही ठीक है सर, लेकिन नीचे 4था नंबर में एक बार में ऑल सेलेक्ट वाला ऑप्शन बोल रहे थे सर। हाँ, सिलेक्ट ऑल दे दूंगा तो मैं सारे ऑपरेशन सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आपका क्या मतलब है? मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल दे दिया, 40, 60, 80, 90, 100 सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने मान लो यहाँ पे सिलेक्ट कर भी लिया, ये सारे मैं सिलेक्ट ऑल करके आ गया ये, ठीक है? यस सर। अब इसका क्या मतलब होगा? ये सिलेक्ट ऑल हो सर गया, मान लो बार बार 1 मिनट रुकिए, ये सिलेक्ट ऑल है आपका, है ना? एक बार में सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया। अब इसने टोटल 82,185 दिया, पर एम्प्लॉय कितना है? 546 आवर का हो गया, ठीक है? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सारा काम एक साथ में बांट दोगे पूरा, मतलब चाहे वो 5,000 घंटे का काम है तब भी एक बार में बांट दोगे, उसका कोई मतलब है? फिर आप अनसेलेक्ट करते डोलोगे, ऐसे ऐसे अनसेलेक्ट करोगे, कौन सा हटाना है? तो सर ये तो ऑपरेशन है, तो इसको तो सारे को सेलेक्ट करना ही है ना सर। सारे को क्यों सिलेक्ट करना है? ये कहाँ लिखा है सारे को सिलेक्ट करना होगा? आज आप 4 काम दे रहे हो तो हम काम तो सिलेक्ट। डेली का काम करते हैं ना सर, अरे जैसे ये ऑर्डर आज तो का काम। मैडम मेरी बात सुनिए, एक डेली का काम करते हो, ये डेली का काम ऐसा है कि जब आप यहाँ पे, यदि ये ऑर्डर उतना ही डेली के लिए बनता हो, ये ऑर्डर आपका डेली का नहीं बना है ना, ये तो मेरा डेली का ऑर्डर बनता है सर, बैग का ऑर्डर रहता ही नहीं है। जो आज काम हुआ उसका पोजीशन हम लोग को शाम को आता है, फिर हम लोग रात में कंप्लीट करके सुबह तक उसको फिट करके लगाना रहता है, तो हम लोग का तो एक ही दिन का आएगा। तो आप पे तो बैक डेट एंट्री कर रहे हो ना, इस वजह से आपको आ रहा है, वहां से कमेंट हो गया बैग सर आज हमको 30 गाड़ी ऑफर हुआ है, 30 वैगन ऑफर हुआ है टोटल, तो उसका जो भी स्टाफ पीओएस करेगा, स्टेफिंग फिटिंग करने जाएगा, वो पोजीशन हम लोग को शाम में 4-5 बजे मिलता है सर। ठीक है, तो हमको अगर एक 30 गाड़ी में एंट्री करना है तो हमको 120 एंगल कॉक चाहिए सर। तो ये 120 एंगल कॉक का होगा ना सर, ये ऑपरेशन आईडी जो 4th नंबर पे ऑपरेशन एक्टिविटी में। तो इसमें तो सर एक बार सेलेक्ट करें या बार बार सेलेक्ट करें? एक अगर हम छोड़ भी देते हैं, जैसे एक एंगल कॉक में, मैं समझ गया, आपके सारा सिलेक्ट करना है तो ठीक है ना? आप तो कह रहे सारा हो ही तो करना है सर, लेकिन सारा नहीं करना है आपको सिलेक्ट, यही तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए करना होगा, लेकिन बाकी शॉप के लिए सारा नहीं करना है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ से। इसी में जैसे अलग अलग ऑपरेशन है ना, कोई क्लीनिंग करेगा, कोई उसका काम करेगा, अलग अलग काम के लिए अलग अलग गैंग बने होंगे ना।
अब इसमें आपने गैंग क्या बना रखा है, एंगल कॉक के लिए एक गैंग बना दिया। अब मान लो उसमें होता कि एंगल कॉक की क्लीनिंग के लिए एक गैंग बनाते, एंगल कॉक की कुछ, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैच करे आपसे, लेकिन किसी 4 आदमियों का एक गैंग है, 4 आदमी जाकर के उसको एंगल कॉक को डिसमेंटल करेंगे, और जाके उसकी क्लीनिंग करेंगे, 4 जाके उसका, तो उसमें से हमें फिर पर्टिकुलर सिलेक्ट करके करना है। आप क्या कर रहे हो, आपके सेक्शन में 10 एम्प्लॉई हैं, 10 एम्प्लॉई को पर्टिकुलर सबको यहाँ पे भी सिलेक्ट ऑल का मांगेंगे, कुछ लोग यहाँ पे भी मांग रहे हैं, वो सबको सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे, और यहाँ से मुझे 5 असेंबली आज ऑर्डर जितने बने यहाँ से सिलेक्ट, धीमे धीमे मांगोगे आप, यहाँ से मांग लोगे और एक बटन दबाओगे, सर काम करवा देगा। गैंग में तो सर चाहिए ही नहीं, इस तरह से वो नहीं क्लिक करना करो। है, काम ये है। मेरी पहले बात सुन लीजिए, बोलना मैं समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ। आप यहाँ पे यदि आपको डेटा एक साथ में डालना है तो सिलेक्ट ऑल, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन होगा क्या इसमें कि आप सारे एम्प्लॉय, सारे ऑर्डर, सारे लोगों को एक साथ करके यहाँ पे डेटा पूरा डाल दोगे। कल को मुझे ये पूछना है कि क्लीनिंग किसने की, तो क्लीनिंग में इन सब के नाम आट के ये पता ही नहीं है क्लीनिंग किसने की। हाँ ये सर सही बात है, आप सही बोल रहे थे। समझ तो गए सर ना बात को? हाँ सर, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात को तो, और लेकिन होता क्या है, फिजिकल जो आपका शॉप फ्लोर पे रजिस्टर रखा है ना, वहां पे बाकायदा लिखा जाता है कि इस 4 काम के लिए ये 2 लोग लगाए गए थे, क्लीनिंग के लिए ये 2 लोग लगाए गए थे, इस काम के लिए रीडिंग लेने के लिए ये 2 लगाए गए थे। कल को जब कोई भी फेलियर होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उन बंदों से जवाबदेही होती है। इसमें क्या होगा कि मैंने 10 के 10, हाँ यहाँ वर्किंग तो लोड सर ही आप जो ज्यादा है। कहना चाह रहे हैं कि वैगन से डिसमेंटल जो एंगल कॉक करने जा रहा है उसका गैंग अलग होना चाहिए, तो आप फ्लोर पे जो बना रहा है एंगल कॉक को क्यूएच कर रहा है उसका अलग होना चाहिए, और फिर देन जो इंस्टॉल करने जा रहा है वैगन में वो अलग गैंग होना चाहिए। हाँ, तो सर उतने फीचर्स भी तो होने चाहिए ना इसमें। आप 50 गैंग बनवा दीजिए, मुझे गैंग बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बनवाइए। तो फिर वो सर, वो जिस सर आप गैंग की ऑपरेशन बात उतना करें, कहाँ होता है सर, बस पीओएच का है और स्ट्रिपिंग फिटिंग का है, क्लीनिंग का तो आता ही नहीं है। अरे नहीं आता है तो आप और कम, आपने जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, इस में आपने कितने ऑपरेशन, जैसे इसमें से सारे कर दिए हैं आपने, इसमें से भी कुछ कर दिए हैं, जैसे मैं 130 ऑपरेशन बना रखे हैं बोगी में, आप यहाँ पे 2 ऑपरेशन बना लीजिए, लेकिन आपको इंसेंटिव चाहिए तो उस ऑपरेशन को ब्रेक करते हैं, हम करते क्यों है इसका भी मुझे रीजन पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। ऑपरेशन इस वजह से बढ़ाए जाते हैं जिससे कि टाइम स्टडी जब होता है तो लोगों का उसमें कुछ, उस टाइम को जितना ब्रेक कर लोगे उतना ही बेनिफिट होता है। सर अब आपकी उसको बात हम बेनिफिट, क्लियरली समझ गए सर, हाँ, तो उस लेकिन बेनिफिट को उसके लिए लेना सर मैन पावर भी तो चाहिए ना। ये इशू देखो एप्लीकेशन का नहीं है, वही मैं अल्टीमेटली वही आता हूँ, ये सर इशू ये सुनिए तो सही मेरी बात आप सर। प्रोजेक्ट कराना, मैं मैन पावर देने नहीं बैठा हूँ, वो नहीं रेलवे नहीं बोर्ड वो नहीं जानता सर, है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ सर, जो आप बता रहे हैं ना, जैसे मैंने एक एंगल कॉक ये किसी वैगन से डिसमेंटल किया तो पहले वो असेंबली अंडर मेंटेनेंस में जाएगा, फिर उसका मटेरियल इशू होगा सर, ओके, मटेरियल इशू के बाद इंस्पेक्शन होगा, तो फिर इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे, पीओएच करें, एंगल कॉक वाला सेलेक्ट करें, या हम स्ट्रिपिंग फिटिंग वाला सेलेक्ट करें। अगर हम पीओएच वाला सेलेक्ट करते हैं स्ट्रिपिंग फिटिंग छूट जाता है, फिर हमको स्ट्रिपिंग फिटिंग वाले गैंग में जाना पड़ेगा जहाँ ये ऑपरेशन एक्टिविटी पर करना पड़ेगा, कंप्लीशन करना पड़ेगा, देन मार्कफिट करना पड़ेगा, और हम मार्कफिट हम कर दिए उस असेंबली, प्रॉपर असेंबली को, तो फिर वो दूसरे स्टाफ के लिए तो बचा ही नहीं कि वो स्ट्रिपिंग फिटिंग वाला गैंग में उसको अलाउ करे। मार्कफिट करना ही नहीं है, जब तक सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा मार्कफिट नहीं करना है। तो फिर सर उसके लिए वेट करना पड़ेगा ना कि एक पीओएच को लगा रहा है, एक स्ट्रिपिंग फिटिंग को लगा रहा है, फिर देन एक इंस्टॉल करने वाला, तो फिर सबको कम्युनिकेट करके वेट करना पड़ेगा, इतना टाइम तो नहीं रहता है ना, वाइज आउट हो जाता है उससे पहले। नहीं, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट जैसे ही आप हाँ सर आपकी नहीं है, ये समझ रहे हैं सर, मैं जिस दिन से आप पहली बार बोल रहे हो ना उस दिन से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो और सिस्टम गलत तरीके वो दूसरे तरीके से बना हुआ है। आप अपने सारा लोग एक काम को करने की कोशिश कर रहा है, सिस्टम डिजाइन्ड है
हर आदमी अपना काम करे, दोनों काम करने की स्टाइल अलग है। आप एक जगह बैठ करके आपको डेटा दे दिया जाता है, आप एंट्री कर रहे हो। सिस्टम इस तरह से डिजाइंड है कि आपका जो सॉफ्ट फ्लोर पे डेटा बना हुआ है, जिस सुपरवाइजर ने, जिस बंदा का उसकी जो डायरी मेंटेन करता है, जो अपना, आपने जॉब डायरी देखी है ना एसएससी की, जो एसएससी की जॉब डायरी में लिखा जाता है डेट वाइज कि ये 4 आदमी क्लीनिंग में लगे, ये 4 आदमी इसमें लगे, ये 4 आदमी इसमें लगे। जो भी उसके पास में 20 लोग रहती हैं, और उस 4 आदमी को क्लीनिंग के लिए किस किस असेंबली में लगाया गया, किस किस रोलिंग उसमें लगाया गया, किसको हमें डिमेंट लगाया गया, हर चीज वो अपनी जॉब डायरी में एक रजिस्टर में हर सेक्शन हुई है और हर कोई लिखता है। वो उसी तरीके से इस एंट्री को बनाया गया है। रही बात उसके लिए, इसको लिंक कर दें हम इंस्पेक्शन से कि ये काम इतने घंटे का था और इतने घंटे में हमने कर लिया, जो भी टाइम सेव होगा उसके हिसाब से इंसेंटिव बनेगा। ये एक उसका सेकंड पोर्शन है। तो लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि आपके जो उस सेक्शन में जितने भी लोग थे, आज 50 असेंबली या 40 असेंबली एंगल कॉक हमें आईओएच करनी थी या पीओएच करनी थी एंगल कॉक की, तो उन सबको 10 का जो बंदा था हमारे सेक्शन में, सबको हमने बोल दिया कि ये 10 आदमियों ने जो भी उस एंगल कॉक को रिपेयर करने की जो हमने एक्टिविटी बना रखी है, या 4 एक्टिविटी या 5 जो भी एक्टिविटी बना रखी है, उन सबको एक साथ सिलेक्ट किया, 40 की 40 असेंबली को, और 10 लोगों को सिलेक्ट किया, सारा काम असाइन कर दिया। आप ये काम कर रहे हो। उसमें जॉब डायरी जो बोल रही है वो अलग चीज बोल रही है। कल को कोई मेरे से पूछा कि मैं जॉब डायरी को रिप्लेस कर दूं, तो जॉब डायरी मतलब मैंने कहा कल से यहाँ से कि अब आपको जॉब डायरी की जरूरत नहीं है, तो कल को शॉप फ्लोर वाला कहेगा, जो एसएससी है जो जॉब डायरी वहां पे बनाते हैं, वो कहते हैं ये जॉब डायरी रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपनी जॉब डायरी में लिखता हूँ कि 4 आदमी, ये 4 आदमी ने इस डेट में क्लीनिंग की थी, इस 4 आदमी ने डिसमेंटल किया था, इस 4 आदमी ने इंस्टॉल किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 10 आदमी ने पीओएच की इतनी एक्टिविटी पता है, 10 के बराबर बराबर बटे हुए हैं काम, तो वो जॉब डायरी एक और तरीका नहीं हो पाएगी। सर एक मिनट डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो सर, उन लोग के सेक्शन का एसएससी हम हैं जो बात कर रहे हैं अभी आप लोग से। हाँ सर एक्चुअल में मैन पावर का सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हम लोग के पास में, इसलिए सर हम लोग एक आदमी को सर वो मॉनिटरिंग करते हैं, बाद बाकी सर ये लोग सब सेक्शन वाइज काम करते हैं सर, तो इसीलिए दिक्कत थोड़ा हो रहा है सर। मैं समझ गया। उसके लिए दूसरे तरीके हैं, या तो देखो बाकी वर्कशॉप जैसे जगाधरी ने मैन पावर कॉन्ट्रैक्ट करी है, ठीक तो है। सर एक बात मैं बोलूं सर, लोअर परेल वर्कशॉप है, और आप उससे पूछिए रायपुर वर्कशॉप से, रायपुर ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट में मैन पावर कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनके यहाँ एम्प्लॉय आ भी गए हैं। तो उस वही तरह सर से हम लोग सर बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए सर एक आदमी को, जैसे कि ये अमित जो सर बोल रहा है, इसके ऊपर सर बहुत ज्यादा लोड है। एक्चुअल में सर ये एक गाड़ी में 4 गो पीओच लेकिन लगता है या न्यू लगता है। मेरी बात सुनिए, आप अब चाहे कुछ भी किए, लेकिन एनटीएक्सआर आप चाहे कुछ भी कहो, बिना मटेरियल नहीं होगा, डीबी के गाड़ी तो निकाल नहीं दोगे ना आप। ये तो बात सही बोले सर, मीना उसका तो तो नहीं अब मैं एप्लीकेशन में ये प्रोविजन तो नहीं दे सकता है कल को जो मेरे से डेटा, जिसके लिए मुझे ऑथराइज बनाने के लिए मैंडेट मिला है कि आपके मुझे पेपरलेस वर्कशॉप बनाना है, तो लेकिन मैं दूसरी तरह से फंक्शनलिटी बना के दे दूं, कल को एप्लीकेशन पे जवाबदेही होने लग जाए। सर आपका कहना बिल्कुल सही है, इसका हम लोग एग्री है सर, लेकिन बिना मेन पावर का हम लोग भी क्या कर सकते हैं सर। तो अब ये मैं वही मुद्दा कह रहा हूँ कि ये इशू ऐसा है कि दोनों को मिलके क्या डिसीजन लेना है वो एक अलग है। कि कल को मुझसे कोई बोले कि एप्लीकेशन फीचर दे दो, बहुत छोटा सा फीचर है, लेकिन डेटा सारा खराब हो जाएगा। डेटा बहुत, अगर इसको सर करना होगा तो एक एंगल कॉक के लिए मुझे 4 आदमी देना पड़ेगा, एक गैंग अलॉट करेगा, सुबह में अटेंडेंस के लिए अलग देना पड़ेगा सर, उसमें बहुत दिक्कत है सर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सारा डेटा जो है एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं, इन लोगों को जो सर पर्टिकुलर सेक्शन में है उसको सर हम लोग वो डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, वो सर सारा एंट्री करता है। अब देखो ये एक थोड़ा सा वैसा इशू है, मैं एप्लीकेशन ना तुम्हारा इशू है ना हमारा इशू है, ये एक थोड़ा डिसीजन मेकिंग इशू है कि इसमें क्या डिसीजन लेना है। नहीं तो सर जैसे बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है, तो जिनको बार बार सेलेक्ट करना हो तो वैसे भी बार बार सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जैसे भी जमालपुर वर्कशॉप में भी हो रहा है, तो उसमें अगर हम लोग को एक बार ही सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाए तो अभी तो काम चल ही सकता है सर। आप बार बार सिलेक्ट करो,
हम यही तो नहीं चाहते हैं बार बार सिलेक्ट करो, हम तो ये चाहते हैं जो आपके रजिस्टर जिस तरह से मेंटेन है उस तरह से करो, उसके लिए मैन तो पावर सर कम है। जैसे ठीक है सर, आप यहाँ नहीं दे रहे हैं वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन, ठीक है, लेकिन सर इसी इसी ऐप में अभी जहाँ स्टॉप एक्टिविटी भी ऑर्डर में स्टार्ट वर्क ऑर्डर करने जाते हैं, वहाँ 6 ऑपरेशन आईडी एक बार में सिलेक्ट हो रहा है। हो रहा है तो वहाँ सर क्यों हो रहा है? दोनों जगह तो सेम ही चीज है, तो फिर नहीं, दोनों एक जगह आप दे रहे हैं, एक जगह नहीं दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, दोनों जगह सेम नहीं है, आपके लिए ऑप्शन सेम है लेकिन मेरे लिए सेम नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उसकी जो आईआर सीट जनरेट जो इंस्पेक्शन फॉर्म बनाता है ना, उसको मल्टीपल सिलेक्शन से और सिंगल सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। उसके में वर्क को जो तुरंत में वो कह सकता हूँ कि आपका वर्क पूरा 100% मेरे पोर्टल पर आ गया है, आपको आज से रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो मल्टीपल सिलेक्शन मांग रहे हो ना, वो ऐसा मांग रहे हो कि मैं जिंदगी में भी नहीं कह पाऊंगा कि आपका काम मैंने पेपरलेस कर दिया है, क्योंकि आपका फिजिकल रजिस्टर कुछ अलग बोलता है और ये सॉफ्टवेयर कुछ अलग बोलेगा। तो सर फिजिकल रजिस्टर और वाइज में 2 ही चीज आ रहा है ना सर, एक OH आ रहा है और एक स्टेपिंग फिटिंग आ रहा है। फिजिकल रजिस्टर अलग आप बोल रहा है कि 4 आदमी आपने हर जगह बोल रखे हैं कि ये 4 आदमी हाँ सर ये 4 आदमी इसमें लगे, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो सर 2 ही काम होता है ना, एक टॉप फ्लोर में POH करता है और एक WIS 1 2 3 4 5 में मटेरियल लगाने जाता है। तो आप इंस्पेक्शन के वक्त की वो 2 ऑप्शन दे दो हमें। अरे तो वो मैंने नहीं बनाया है, वो आपने बनाया है, वो मैंने नहीं बनाया। इंस्पेक्शन जो बंदा OH कर, आप शायद एप्लीकेशन, आप समस्या ये है कि आप लोग इंडिविजुअल हो, आप अपने इंचार्ज से बात करिए। जो मैंने लक्ष्मण को बुलाया था कि लक्ष्मण और राकेश, आप लोग जो इसको देखते थे कि जो आपने आईआर सीट जो आपने बनाई है ना, ये इंडिविजुअल वर्कशॉप ने बनाई है, इसमें हमने नहीं बनाई है। 10-20 एक्टिविटी, वर्टिकल लेबर ब्रशिंग, एंकर लिंक, ब्रेक हैंगर, ये जितनी भी एक इसमें ICF बोगी के लिए एक्टिविटी बनाई है ना, ये क्रिस ने बना के नहीं दी है, ये आपके वर्कशॉप ने खुद डिफाइन करी है EDP वाली आईडी से। आप इसमें एक एक्टिविटी बनाइए, 2 बनाइए, ये आपकी चॉइस है। आप इसको कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, आपका चॉइस है। ये हमारे पास में ऑथराइजेशन नहीं है इसका। प्रॉब्लम ये भी है ना सर, हम लोग का आउटर्न भी 600-700 गाड़ी है सर पर मंथ, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब इसीलिए होता है। नहीं, मैं समझ गया, 600-700 गाड़ी ठीक है, लेलुआ का और भी ज्यादा है, ऐसा नहीं है लेलुआ का कम है। लेलुआ कम होता ना सर, अगर गाड़ी कम होता तो हम लोग बोलते ही नहीं ये चीज करने के लिए सर। नहीं, लेकिन इनका जवाब मैं बता रहा हूँ, आप उस एक्टिविटी को ज्यादा बनवा लियो तो कम कर सकते हो। जो अभी मैंने वो आपके यहाँ पे सर वो जो एक्टिविटी है उसको कैसे कम करेंगे सर? 2 तो POH का उसमें असेंबली आईडी है और 4 स्टेपिंग फिटिंग। अगर हम कम करते हैं तो फिर तो वो वैगन में इंस्टॉल सही से होगा ही नहीं। जो शॉप एक्टिविटी का हम बात कर रहे हैं, एक बार क्लिक का अगर हम कोई कीज छोड़ देते हैं, जैसे ऑपरेशन आईडी 40 नंबर हम छोड़ दिए, तो फिर इंस्टॉल जिस वैगन में वो प्रॉपर इंस्टॉल तो हुआ नहीं है। ये देखो, अब मैं इसमें आप कम भी नहीं करना चाहते हो और काम भी नहीं करना चाहते हो, तो वो मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी। फिर तो सर वो तरीका आप ही बताओगे ना सर, कैसे कम कर सकते हैं? एक ही PL नंबर में एक ही असेंबली आईडी में सारा ऐड कर दें। मैन पावर का तरीका मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं सर, मैन पावर का नहीं, ये जो 6 असेंबली आईडी बन के आ रहा है 10 20 30 करके सर। 50 आए, मेरे मतलब नहीं है, लेकिन मैं टेक्निकली गलत हूँ। मेरी एप्लीकेशन में कोई बग है, टेक्निकली प्रॉब्लम है, तो उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन मैन पावर नहीं है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैन पावर का जवाब CWM साहब देंगे, आपका हेडक्वार्टर देगा, आपका रेलवे बोर्ड देगा। छोड़ दो अमित। ओके सर, ओके। दूसरा, तुम वो क्या नाम है राकेश, और कोई इशू था मटेरियल का आपका? हाँ सर, उसमें जब मटेरियल सेव करते हैं ना, जब डाल करते हैं 10 से ज्यादा, एरर सेविंग लिखता है सर, और एरर सेविंग लिखने के बाद वो नीचे आता नहीं है लिस्ट, उस वैगन को दोबारा डाल करके देखना पड़ता है इशू हुआ कि नहीं हुआ। जी हमने मल्टीपल मटेरियल इशू वाले में बोल रहे हैं ना, ये वाला कहाँ गए? ऑनलाइन कर देंगे। आप क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं ठीक है मैं। हाँ सर, UDM मटेरियल इशू। हाँ सर, UDM मल्टीपल मटेरियल इशू वाला में है।
उसमें हमने एक नया इरर सेविंग आता है सर सेव करने के बाद, 10 के और ऊपर नीचे लिस्ट भी नहीं आता है कि इशू हुआ कि नहीं हुआ। ऊपर आता है ना उसका यूडीएम रिस्पांस करके आ रहा है। एक बार रमन सर, हेलो। जैसे सेव करते हैं ना सर, सबमिट करते हैं तो इरर हाँ सेविंग विकास लिख जी, देता है और हमें पता नहीं चलता है कि ये इशू हुआ कि नहीं हुआ। हमको दोबारा वो बैगन डाल करके फिर वहीं पर पहुंच करके देखना पड़ता है कि वो इशू हो गया। एक मिनट में शेयर। Just show the multiple material issue in the rolling stock. ओके ओके। 10 से ज्यादा सेव करते हैं तो वो हो जाता है। ये किस वाले में, असेंबली में बोले कि ये रोलिंग स्टॉक में बोल रहे हैं? दिस वन ना, नो, इन रोलिंग स्टॉक आई थिंक। रोलिंग स्टॉक सर 10 से ज्यादा होना चाहिए मिनिमम। 15 करते हैं एक बार में, नहीं होता है। ये वैगन में कर रहे हैं ना? हो सकता है सर हम लोगों के आईडी में प्रॉब्लम। इट इज सर या इट इज देयर ना, मीडियम मल्टीपल मटेरियल इशू। सेलेक्ट वन रिकॉर्ड। ये आ रहा है ना मल्टीपल मटेरियल इशू रिस्पांस, ये हमने दे रखा है, इसमें दिख नहीं रहा है आपको? जस्ट गुड अपसाइड मल्टीपल मटेरियल इशू रिस्पांस, तो इसमें हर जो टीएल हमने सेलेक्ट किया उसका रिस्पांस आ जाएगा, क्या इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें दिखता है। ये एक बार आप चेक करना, अगर नहीं आया तो फिर देख लेंगे। हेलो हेलो हेलो, हु इज द यूजर हियर? राकेश है। राकेश जी, राकेश maybe Vikas ji, you can we can have a one-to-one session with him. Okay. Probably he might be facing some other issue. It is there. He has to. We'll show him.